Hello, my dear children. Welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. My name is Vandana and we are doing SST Class 8th. Children, this is your book, Time Travelers, Unraveling Mysteries. So today we are going to start with chapter number 2 of Geography, and the name of the chapter is Land, Soil and Water Resources. So let's start with the chapter, and before that you have to do this exercise. You have to label each layer of the soil. So here different layers are given. You have to label them. Land is the most important of all the natural resources. So जितने भी natural resources हैं उसमें से जो land है, it is the most important. It is the most important. It serves as the source of all other resources. ये जितने भी other resources है उसका एक main source है. Such as minerals, forest, the life form above and below the surface. Different types of soils, surface water, human settlements and population. So जितनी भी चीजें हैं इन सब का जो मेन सोर्स है वो है लैंड, क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो भी इस लैंड में ही मिलते हैं, फॉरेस्ट भी यहीं पे मिलते हैं, लाइफ चाहे वो लैंड के ऊपर हो चाहे वो लैंड के नीचे हो, वो लैंड पे ही होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल भी लैंड में ही मिलते हैं. सरफेस वाटर जो होता है वो भी लैंड पे ही बहता है, और जो भी ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं या जो पॉपुलेशन है वो सब कुछ लैंड पे रहता है. इसलिए कहा जाता है कि जो लैंड है इट इज द प्राइमरी सोर्स. In this chapter, we will learn about these basic natural resources, their availability, importance and usage, and their conservation. We must use these resources judiciously without hindering growth. हमें इन resources को बहुत ही judiciously use करना चाहिए. This we will learn. Land. Land is the rocky outer layer of the earth. Earth का जो rocky outer layer है उसे land कहते हैं. It is rich in natural resources and should be used properly. Land provides food and water to all living organisms. So land क्या करता है? Food और water provide करता है जो भी living organisms हैं उनको. Human activities in the particular area are determined by the type of land in that area. So जो भी human activities होती है किसी भी area में वो वहाँ के land पे depend करती है. In urban regions, land is a limited source due to the demand of housing and industries. Urban areas में जो land है वो काफ़ी ज़्यादा limited होता है क्योंकि यहाँ पे houses की बहुत ज़्यादा requirement होती है, industries की काफ़ी requirement होती है. Land is also required for agriculture, infrastructure and open space to maintain the ecosystem. Land जो ज़रूरी होता है agriculture के लिए, infrastructure के लिए, और जो भी open space होता है उसे maintain करने के लिए इस open ecosystem. Judicious use of land helps in conservation of soil. So ये जो land है इसका जो judicious use है ये soil conservation में helpful है. Groundwater and also helps us to put a check on pollution. So pollution check में भी ये help करता है. Therefore, strict laws should be enforced to ensure prevention of cultivable land. So government को strict laws बनाने चाहिए कि कल्टिवेबल लैंड को कैसे प्रिजर्व किया जाए. 30% ऑफ द लैंड सपोर्ट्स 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. सो ये जो 30% है लैंड का, ये 90% वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसे सपोर्ट करता है. लैंड यूज पैटर्न. लैंड यूज पैटर्न मीन्स द वे इन विच अवेलेबल लैंड इज यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. सो लैंड पैटर्न का यूज पैटर्न का मतलब है जो भी अवेलेबल लैंड है उसे कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है डिफरेंट पर्पसेस के लिए. डिफरेंट कम्युनिटीज हैव डिफरेंट लैंड यूज पैटर्न. जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनके पास अलग अलग लैंड यूज पैटर्न्स हैं विच मे चेंज विद टाइम, जो टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है. चेंज इन लैंड यूज पैटर्न्स में डिपेंड अपॉन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी. सो ये जो चेंज है लैंड यूज पैटर्न का वो डिपेंड करता है डिफरेंट स्टेजेस पे जो कम्युनिटी के हैं. Improper usage of land can lead to long-term, irreversible economic with environmental problems like land degradation, landslides,
सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन एंड पॉल्यूशन। सो अगर हम लैंड को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं, सो ये सारे प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ सकता है। लैंड डिग्रेड हो सकता है, उसमें लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, सॉइल इरोड हो सकता है, डेजर्टिफिकेशन हो सकता है और ऊपर से पॉल्यूशन भी हो सकता है। टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अ लैंड वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द फॉलोइंग। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने लैंड का बेस्ट यूज करना है तो हमें इन सारे बातों पे ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट इज लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मस्ट बी एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली। लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हमें फॉलो करना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और इको फ्रेंडली है। एप्रोप्रिएट यूज लैंड यूज कंट्रोल मेजर्स मस्ट बी अडॉप्टेड। सो एप्रोप्रिएट लैंड यूज कंट्रोल मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए। लैंड पोल्यूशन एंड इट्स एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल वेस्ट में बी प्रिवेंटेड और मिनिमाइज। लैंड पोल्यूशन और उसका जो भी एक्सपोजर है इंडस्ट्रियल वेस्ट का, उसे प्रिवेंट करना चाहिए या फिर मिनिमाइज करना चाहिए। इकोलॉजिकल बैलेंस मस्ट बी मेंटेन अलॉन्ग विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो करें पर उसके साथ इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करें। Major landforms. Some major landforms are discussed below include mountains. Mountains are large landforms that rise above the surrounding land in the form of peaks. So mountain जो है वो large landforms हैं जो rise करते हैं above the surrounding lands in the form of peak. जो surrounding lands के पास rise करते हैं फॉर्म्स पीक के फॉर्म में। दे आर स्टीपर दैन हिल्स, ये हिल्स से स्टीपर होते हैं। माउंटेन्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग रीजन एंड आर द सोर्सेज ऑफ पेरिनियल रिवर्स। सो ये जो माउंटेन है वो उस जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं और यहाँ से पेरिनियल रिवर्स निकलते हैं। मोस्ट माउंटेन्स आर रिच इन फ्लोरा एंड फाउना। ज़्यादातर जो माउंटेन है वो फ्लोरा और फाउना से भरपूर होते हैं। द हिमालयंस, Rockies, Andes, Atlas and Alps are some important mountain ranges of the world. So ये जो है कुछ mountain ranges जो है बहुत important mountain ranges of the world. Next is the plateau. The plateaus are elevated uplands with a flat top. So ये जो है elevated uplands हैं जिसके जो top है वो flat होते हैं. They usually descend steeply into the surrounding lowland. Plateaus are also known as tablelands. इसे tablelands भी कहा जाता है. They are useful as grazing grounds for animals and are also useful for farming. So ये grazing ground का काम करते हैं और farming के लिए भी बहुत ज़्यादा useful होते हैं. Some are important for their mineral wealth. और ये जो कुछ plateaus हैं ये अपने mineral wealth के लिए भी जाने जाते हैं. The Deccan Plateau, the Brazilian Plateau, the Arabian Plateau and the Mexican Plateau. So ये कुछ plateaus हैं, are some important plateaus of the world. ये कुछ important plateaus हैं world. Here you can see the picture of the Deccan Plateau. Plains. Plains are very vast stretch of low, flat and slightly undulating land. So ये जो plains है ये स्ट्रेच करते हैं, ये बहुत ही वास्ट होते हैं, लो होते हैं और फ्लैट होते हैं एंड मेनी ऑफ देम आर मेड बाय द डिपोजिशन ऑफ फाइन सिल्ट ब्रॉट बाय रिवर्स. सो ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ प्लेन्स. आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो प्लेन्स की एंड दीज आर many of them are made by the deposition of fine silt. Fine silt की वजह से ये बनते हैं जो रिवर लेके आते हैं. They have great agricultural importance. यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है. Coastal plains made of fine soil brought by the sea support agriculture as well as fishing. So जो coastal plains हैं जो बनते हैं fine soil से, जो sea से आता है, ये सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर एज वेल एज फिशिंग. यहाँ पे फिशिंग भी कर सकते हैं. प्लेन्स फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट डेंस नेटवर्क ऑफ रेल एंड रोड. सो यहाँ पे रेलवे और रोड नेटवर्क दोनों ही बहुत डेंस है, बहुत ज़्यादा है. दैट इज वाई दे आर अमंग द मोस्ट डेंसेस्ट पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि यहाँ पे
सो इसी वजह से यहाँ पे जो है काफी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है. द रिच द फर्टाइल प्लेन ऑफ इंडिया आर द ग्रेट ग्रेट एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस. सो जितना ज्यादा रिच या फिर फर्टाइल होगा कोई प्लेन वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा एग्रीकल्चर के लिए. The Indo-Gangetic plains are large alluvial plains drained by the three main rivers, Indus, Ganga and Brahmaputra. So जो Indo-Gangetic plain है जहाँ पे ज्यादा एलुवियल प्लेन्स हैं, इसे ड्रेन कर देती है तीन रिवर्स मिलके जो है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र. यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. कैसे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं. माउंटेनियस एंड हिली लैंडफॉर्म्स आर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज. सो ये दोनों जो हैं ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं. इन सम ऑफ दीज एरियाज टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस. सो इन जगहों पे टेरेस फार्मिंग करते हैं. द हाई मीडोज आर यूजफुल फॉर कैटल रियरिंग एंड द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स न्यूमरस यूजफुल प्रोडक्ट्स. सो यहाँ पे जो मीडो है जो हाई होता है वो कैटल रियरिंग के काम आता है और यहाँ पे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेस्ट से मिलते हैं. हिल्स ऑल्सो अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट. सो हिल्स में को जो है वो क्या करते हैं वो बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी करते हैं. प्लेन्स कंप्राइज अरेबल लैंड्स विच सपोर्ट अ डेंस पॉपुलेशन. प्लेन्स में जो है अरेबल लैंड है जो डेंस पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है. लैंड use pattern and the plains has changed over the years due to urbanization and development. So land use pattern जो है change हो गया है plains में urbanization की वजह से और development की वजह से change हो चुका है काफी ज्यादा. Deserts cannot support life due to its intensely dry and climatic extensive extreme climate condition. सो जो डेजर्ट्स हैं यहाँ पे ज़्यादा लाइफ सपोर्ट नहीं होता है. लाइफ यहाँ ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है. अ फ्यू नोमैडिक ग्रुप्स मैनेज टू सर्वाइव इन सम रीजन्स हैविंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर. सो कुछ नोमैडिक ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाती हैं जो जिनके पास बहुत कम क्वांटिटी में वाटर होता है. प्लेट्यूज हैव ग्रेट गुड क्लाइमेट, favorable topography and rich soil rich in minerals. So जो plateaus है यहाँ पे जो topography बहुत अच्छा है, climate बहुत अच्छा है और जो soil है वो mineral से भरा हुआ है. Good utilization of resources in the plateaus can lead to development and economic growth. अगर इन plateaus को अच्छे से utilize किया जाए, इनकी resources को use किया जाए तो economic growth बहुत ज़्यादा हो सकती है. There are an estimated 188,000 plateaus in the world. What are badlands? Badlands are dry, eroded land which comprises blueberries, ravines and canyons. So ये जो एरिया है ये ड्राई होता है, eroded land होता है यहाँ पे और यहाँ पे ये सारी चीजें इन बंद होती हैं. These lands have steep slopes, loose and dry soil. ये जो लैंड है यहाँ का जो स्लोप है बहुत ज़्यादा स्टीप होता है और जो सॉइल होता है वो बहुत लूज होता है और ड्राई होता है. And deep sand. Such features make badlands difficult to travel and other purposes. जो ऐसे जो कुछ features हैं ये badland इसमें इसकी वजह से जो badland है बहुत ज़्यादा difficult होता है traveling के लिए और बाकी purposes के लिए. They are unpopulated and unproductive. और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा unpopulated और unproductive. Soil. The thin uppermost layer of the earth's crust in which plants grow is called soil. जो thin uppermost layer होता है earth का crust का जिसमें plants grow करते हैं उसे soil कहते हैं. Soil consists of organic and inorganic materials. Soil में organic और inorganic material होता है, water होता है और air होता है. The following factors determine the properties of soil. यहाँ पे कुछ factors हैं जो soil की property को determine करते हैं. The parent rock gives the soil its physical and chemical properties. जो parent rock है वो soil को उसकी physical और chemical properties देता है. Plants and animals determine the human content into soil. जो plant और animals हैं वो अपना जो भी humus content है वो soil में देते हैं determine करते हैं. And topography and the relief, height and slopes of the land determine soil pH. सो जो टोपोग्राफी होता है लैंड का
जो रिलीफ होता है, हाइट होता है और स्लोप होता है, ये डिटरमाइन करता है सॉइल के थिकनेस को. क्लाइमेट एंड टाइम डिटरमाइंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस कंटेंट. क्लाइमेट और जो टाइम है वो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ वेदरिंग और ह्यूमस कंटेंट को. टाइम डिटरमाइंस सॉइल थिकनेस और टाइम बताता है सॉइल कितना थिक है. सॉइल फॉर्मेशन. Soil is formed when surface rock breaks down into smaller pieces by the process of weathering. So weathering process से जब soil जो rocks हैं वो धीरे धीरे smaller parts में divide हो जाते हैं तो soil बनता है. These smaller pieces are then gradually mixed with organic matter. और ये जो smaller pieces हैं इसे organic matter के साथ मिला के soil बनाया जाता है. Soil formation is a slow process which takes hundreds and even thousands of years. सॉइल फॉर्मेशन को होने में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं. सॉइल प्रोफाइल को कैसे देखा जाए? इट रिफर्स टू द लेयर्स ऑफ सॉइल. सॉइल प्रोफाइल का मतलब है कितने लेयर्स हैं सॉइल में, विच आर कॉल्ड होराइजन्स. इन्हें होराइजन्स भी कहा जाता है. इफ अ 1 मीटर डीप पिट इज डग इनटू द ग्राउंड, अगर 1 मीटर गहरा पिट हम ग्राउंड में डिग करते हैं, वी कैन सी द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एंड द होराइजन्स ऑफ सॉइल. हम देख सकते हैं कि अलग अलग होराइजन सॉइल हमें वहाँ पे दिखाई देंगे. सॉइल प्रोफाइल्स में वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और अलग अलग जगह की अलग अलग सॉइल प्रोफाइल होती है. Here you can see the picture of soil profile. The first is the top soil, then the subsoil, weathered rocks. The first is horizon pool. This is a surface layer which is composed of organic materials like plant roots, foreign leaves, humus and dead insects. So ये जो horizon O है यहाँ पे वो सारी चीजें हैं जो इस soil को organic बनाते हैं, जिसमें बहुत सारे organic materials होते हैं जैसे कि plants के root होते हैं, foreign leaves होते हैं, humus होते हैं और dead skin और dead insects होते हैं. Horizon E. अब ये रहा हमारा horizon E जो होता है हमारा top soil. Below the horizon zero lies the a zone which contains fine weathered rocks, minerals, nutrients, humus and organic matter. Next is horizon B, which is the subsoil. It lies below horizon A and this zone is made of small weathered rocks. Some of the minerals from horizon A drain down to this zone and gets accumulated here. So काफी सारा कई बार होता है काफी सारे जो मिनरल्स हैं वो हॉरिजन ए से हॉराइजन बी तक पहुंच जाते हैं और यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं. हॉराइजन सी. अब ये है हमारा हॉरिजन सी जहाँ पे वेदर्ड रॉक्स है. दिस लेयर इज कंप्राइज मेनली ऑफ स्मॉल रॉक्स फ्रॉम विच द अपर सॉइल इज फॉर्म्ड. सो ये जो लेयर है इसमें स्मॉल रॉक्स होते हैं जो जिसमें अपर सॉइल जो है बनता है. सॉइल्स ऑफ इंडिया. Soils in India have formed under hot and humid climate. ये जो soils हैं इंडिया में वो hot और humid climate से बनते हैं and from different types of parent rock. और अलग अलग तरीके के जो parent rocks होते हैं उससे बनते हैं. So the color of soil, its mineral composition, texture and structure and organic content vary from place to place. इसलिए ये सारे जो features हैं वो हर place पे different होते हैं. Broadly 6 types of soils are found. इंडिया में 6 तरीके के सॉइल्स हमें मिल सकते हैं. The first is the alluvial soil. Here you can see the picture of alluvial soil. This is found in the plain areas of river Ganga and Brahmaputra. So इस region में आपको ये alluvial soil मिलेगा. And in the deltas of southern peninsula, along the eastern coast. This is a fine grained soil that brought down the deposited of the rivers. So rivers का जो deposition है वो यहीं पे आता है. इसलिए से ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल होता है. इट इज वेरी रिच इन मिनरल कंटेंट एंड देयरफॉर मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल एग्रीकल्चर इन इंडिया. सो ये जो है काफी रिच है मिनरल कंटेंट में और ये बहुत ज्यादा सुटेबल है लार्ज स्केल एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में. द नेक्स्ट इज द ब्लैक सॉइल. दिस सॉइल इज फाउंड ओवर लावा डिपॉजिट्स इन द डेक्कन. सो ये जो सॉइल है ये लावा डिपॉजिट्स जो है डेक्कन में इससे बनता है. एंड द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, इन सारी जगह पे ये ब्लैक सॉइल आपको मिलेगा.
These soils are often good, often called black cotton. इन्हें black cotton भी कहा जाता है soil. As this type of soil is suitable for growing cotton. क्योंकि इस soil में cotton बहुत ज़्यादा grow किया है. Locally they are called regur. These soils can retain water and are rich in organic content. So ये जो soil है ये water को retain कर सकता है और organic content में अच्छा होता है. Red और yellow soil. Red soil and yellow soil have the same color as their name suggests. So जैसा इनका नाम है वैसे ये soil दिखते हैं. They get their color from huge concentrate of iron oxide. So इनके अंदर iron oxide बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इनका नाम ऐसा है. They are found around the black soil zone in the western Ghats. So जो black soil zone है वहीं पे ये मिलते हैं. Eastern Madhya Pradesh and in the parts of Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. These soils form over different rock types. ये जो soils हैं ये different rock types को form करते हैं and cannot retain much moisture. और ये काफी ज़्यादा moisture को अपने अंदर retain नहीं कर सकते. One can find stunned forest and drought-resistant crops growing abundantly on such soil type. So आप जो यहाँ पे stunned forest grow हो सकता है और जो drought-resistant crops हैं वो यहाँ पे grow हो सकते हैं soil में. Sandy desert soil. These are found in the dry and the semi-dry areas of Rajasthan. So ये जो soil है ये dry और semi-dry areas में पाया जाता है राजस्थान के. These soils are sandy to gravelly with low organic content and low nutrition. So ये जो soil है ये बहुत ही ज़्यादा gravelly होता है जिसमें organic content बहुत कम होता है और nutrition भी बहुत कम होता है. They vary in color from reddish to light brown. ये reddish से cloud brown तक के color में होता है. The soil has high soluble salts but is low on humus content. So ये जो soil है ये इसके अंदर high soluble salts होता है but इनका जो humus content होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है. Sandy desert soil is not suitable for cultivating crops. Crops को grow करने के लिए soil suitable नहीं है. Laterite soil. The area where that receive heavy rainfall mostly have laterite type of soil. So वो area जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है उसे laterite soil type का soil होता है वहाँ पे. It is also reddish in color but different from red soil in their mineral composition. So ये भी reddish color के होते हैं लेकिन red soil से different है. Weathering plays a major role in the formation of these soil. So weathering की वजह से ये soil बनता है यहाँ पे आके. These lumpy soils can be broken down easily when they are damp, but when they are dry, they turn hard as a rock. So ये जो soil है ये easily जो ऐसे break किया जा सकता है जब ये गीले होते हैं, लेकिन जब ये सूख जाते हैं तो इन्हें तोड़ना एक rock को तोड़ने जितना hard हो सकता है. These are locally known as paths in the Chota Nagpur Plateau area. Next is the mountain soil. These are found in the Himalayan mountains and vary from deep alluvial in valley to highly gravelly soils based on altitude and vegetation. The mid-altitude zone contains coniferous trees and low humus content. The soil surface of the higher altitude zone area remains under snow. Many of the deltaic regions are affected by tidal waves and currents where the soil is saline. Marshy tracts are usually found in these areas. So ये जो mountain soil है ये ज़्यादातर Himalayan mountain और उसके आसपास की जगहों में मिलता है. ये जो soil है ये deep alluvial soils है जो वैली से मिलता है और ये यहाँ का जो altitude है उस पे उसके according ही होता है. जो mid altitude zone है यहाँ का वहाँ पे coniferous trees होते हैं जिसमें जो है low humus content होता है. The soil surface of the higher altitude zone frozen area remain under snow. और जो यहाँ जो higher altitude frozen zone के जो soil है वो frozen रहता है, वो snow के अंदर रहता है. Many of the deltaic regions, बहुत सारे जो deltaic region होते हैं वो affect करते हैं tidal wave से या current से
जहाँ पे ये सॉइल जो है सलाइन बन जाता है, मीन्स नमक वाला सॉइल बन जाता है. मार्शी ट्रैक्ट्स आर यूजुअली फाउंड इन these regions. सो जो मार्शी ट्रैक्ट्स होते हैं वो इजिली इन एरियाज में मिल सकते हैं. Next is soil erosion. Soil erosion is a process by which the upper layer of the soil is removed from the earth's surface. So soil erosion क्या है? वो चीज है जिससे ऊपर की जो लेयर है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है, वॉश ऑफ हो जाती है. The following are the different causes of soil erosion. Soil erosion के different causes यहाँ पे दिए गए हैं. First is the flowing water. Soil erosion occurs due to heavy rainfall. So ज़्यादा बारिश आ गई, फ्लड हो गया रिवर्स में या सी कोस्ट पे, इसकी वजह से जो टॉप लेयर होता है सॉइल का वो बह के पानी के साथ चला जाता है. नेक्स्ट इज स्पीडी विंड्स. सो हाई वेलोसिटी विंड्स जब ऐसी एरियाज में आते हैं तो क्या होता है, वो अपने साथ जो सॉइल रहती है इसे जो है ले जाते हैं उड़ा के और इन्हें ड्राई और बैरन बना देते हैं. ह्यूमन एंड एनिमल एक्टिविटीज. सो कुछ ह्यूमन और एनिमल एक्टिविटीज उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है. डिफॉरेस्टेशन हो गया, जैसे कि अगर हमने पेड़ कट कर दिए, या ओवर ग्रेजिंग हो गया, या ओवर क्रॉपिंग हो गया, इन चीजों की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. सॉइल कंजर्वेशन. अब सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं. सॉइल इज अ रिसोर्स विच कैन नॉट बी रिप्लेस. सॉइल एक ऐसी चीज है जिसे रिप्लेस नहीं कर सकते. Its formation is a slow process, therefore it is vital to check its erosion. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी इरोजन को चेक किया जाए. We must adopt methods to conserve, protect, renew and maintain soil fertility. So हमें methods को adopt करना चाहिए जिससे हम soil को conserve कर सके, protect कर सकते, renew कर सके और इसकी fertility को maintain कर सके. It can take up to 1000 years to form 1 centimeter of soil. So 1000 साल तक लगता है 1 सेंटीमीटर सॉइल बनाने में. Methods of soil conservation. Afforestation. Soil को कैसे कंजर्व किया जा सकता है? Afforestation. Planting trees and plants in the areas where the vegetation cover has been removed is called afforestation. So पेड़ों को ग्रो करना ऐसे एरिया में जहाँ पे वेजिटेशन कवर जो है हट चुका है, सो इसे ही कहते हैं afforestation. Desertification can also be checked by planting trees along the margins of the deserts. So in deserts के चारों तरफ अगर हमने trees को plant कर दिया तो desertification को भी check किया जा सकता है. Terrace farming. Terraces are built on the slopes of the mountain. Mountains के जो slopes हैं वहाँ पे terrace बनाए जाते हैं जहाँ पे terrace farming होती है, crops को वहाँ पे grow किया जाता है on each terrace. The steps reduce the intensity of the free flowing rainwater. और जो स्टेप्स हैं वो जो फ्री फ्लोइंग रेन वाटर है उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं. एंड द प्लांट्स प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. और जो प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं वो सॉइल को वॉश आउट होने से बचाते हैं. द सॉइल न्यूट्रिएंट्स विच आर वॉश्ड बाय द वाटर. जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो पानी जैसे बाहर ले जाता है अपने साथ, आर कैरीड डाउन टू द नेक्स्ट लेवल. और ये जो है अगले लेवल तक पहुंच जाता है. So here you can see the picture of terrace farming. अब आप देख सकते हो कि अलग अलग जो है स्टेप्स बने हुए हैं और इन स्टेप्स पे ही फार्मिंग की जा रही है. सो मान लो अगर बारिश की बूंदें यहाँ पे पड़ी हैं तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो बह के अगले स्टेप तक आ जाता है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होता है. नेक्स्ट इज काउंटर फ्लोइंग. अब काउंटर फ्लोइंग क्या है? इन दिस मेथड क्रॉप्स आर ग्रोन अक्रॉस द स्लोप्स and along the contours of the land. So here you can see the picture of contour forming and it checks the flow of water. ये water flow को check करता है. Controlled grazing. Grazing को controlled रखना है. It is important to regulate how much and how often cattle are allowed to graze the land. So इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि जो cattle है वो कितनी बार जा रहा है graze करने के लिए in lands में. This helps the grass to grow back, which prevents soil erosion. So अगर इसे चेक किया जाए तो ग्रास फिर से ग्रो होगी जो सॉइल इरोजन को खत्म कर देगी. नेक्स्ट इज बिल्ड डैम्स. डैम शुड बी बिल्ड टू चेक द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर. फ्लोइंग वाटर की स्पीड को चेक करने के लिए डैम्स को बनाना चाहिए. Dam should be built to check the speed of flowing water. This would control flood and check soil erosion. Crop rotation.
It is a practice of planting different crops in succession to the same piece of land to improve soil fertility. This method conserves the nutrients of the soil naturally. So अगर हमने रोटेट करके क्रॉप्स को ग्रो किया तो क्रॉप रोटेशन से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी. Water resources. Our earth is unique with abundance of water in the form of ocean. हमारा जो अर्थ है उसमें काफी सारा वाटर है. And the presence of large quantities of water is responsible for moderating the temperature condition. So काफी सारे जो है क्वांटिटी में वाटर चाहिए is responsible for moderating the temperature condition. Temperature condition को moderate करने के लिए काफी सारे वाटर की requirement है. The large expanse of ocean reduce the extreme of temperature not only between the summer and the winter season but also between day and night. So जो large amount में water है इसकी वजह से जो आप climate temperature control में रहता है ना कि सिर्फ summer और winter में but day and night. Precipitation of water from the atmosphere results in the water falling on the land surface as well as in the oceans. So ये जो precipitation means जो बारिश है water की उससे जो है एटमॉस्फेयर में काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं. लैंड पे जो वाटरफॉल होता है इससे जो है ओशियंस जो है फिल आउट हो जाते हैं अगेन. वाटर फॉलिंग ऑन द लैंड रन्स डाउन स्लोप्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. और जो वाटर गिरता है लैंड्स पे स्लोप्स के द्वारा ये स्ट्रीम्स और रिवर्स बनाता है. While extensive and thick ice sheets occur in Antarctica, Greenland and other regions around the poles, the less extensive ice sheets occur in high mountains. So ये जो extensive और thick ice sheets हैं जो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दूसरे रीजन्स में हैं वो जो पोल्स के पास हैं. The less extensive ice sheet occur in high mountains. तो जितने हाई माउंटेन्स है वहाँ पे सबसे लेस एक्सटेंसिव ice sheets occur करते हैं. Of the total fresh water available on the land, about 2/3 of the is in the form of ice sheet. So total जो fresh water available है land में उसमें जो सिर्फ 2/3 water है वो ice sheet के फॉर्म में है. The surface water on land is the most easily accessible source of water. जो surface water है land का ये easily accessible है source of water है human needs के लिए. The quantity of surface water in the rain depends not only on the total precipitation. यहाँ पे जो surface water है ये सिर्फ precipitation पे depend नहीं करता है and its seasonal distribution, but it also has a nature of rocks and the soil of land. So इसका सिर्फ मेन कॉज है जो क्वांटिटी है सरफेस वाटर का वो सिर्फ प्रेसिपिटेशन जो है इसके लिए टोटली आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है. बट जो सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है और जो नेचर ऑफ रॉक्स और सॉइल है ये भी यूजुअली रिस्पॉन्सिबल है. The ocean water contains a large quantity of dissolved salts as compared to water on the land. So जो ocean water है इसमें large quantity में dissolved salt है compared to water on the land. So land water के according इसमें काफी amount में salt है. This water is not fit for human consumption, but it provides ideal condition for the origin of different life forms. So ये जो water होता है ocean water वो हमारे पीने के लिए good नहीं है लेकिन इसमें कई सारे lives जो है survive करते हैं. It is believed that life originated in sea and spread to land. ऐसा माना जाता है कि लाइफ सबसे पहले सी में आई थी उसके बाद वो धीरे धीरे लैंड तक आई. Today ocean water is rich in a variety of organic life. आज के टाइम में जो ओशन वाटर है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक लाइफ के को अपने पास उसने सेव करके रखा है. लाइक फ्रॉम मिनट प्लैंकटन टू ह्यूज व्हेल्स. सो छोटे प्लैंकटन से लेके बड़े व्हेल्स तक ये सारी चीजें ये सारे जो वैरायटी हैं ऑर्गेनिक लाइफ के ये आपको ओशन वाटर में ही मिलेगा. The fresh water on the earth's surface is only about 2.7%. जो फ्रेश वाटर है अर्थ के सरफेस में वो सिर्फ 2.7% है और द टोटल वाटर
About 70% of the fresh water occurs as ice sheets in glacier. जो 70% है फ्रेश वाटर का वो आइस शीट और ग्लेशियर के फॉर्म में होता है. Only about 1% of fresh water is available and fit for human use. So इस अब इन सबका सिर्फ 1% जो है वो हमारे यूज के लिए अवेलेबल है. It is mostly found as groundwater and as surface water in river. इसे जो मोस्टली ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर के रूप में ये मिलता है रिवर में एंड लेक में एंड ऑल्सो अ वाटर एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर वाटर वेपर के फॉर्म में मिलता है. फ्रेश वाटर इज द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स ऑन अर्थ. फ्रेश वाटर जो है मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है अर्थ पे. इट्स टोटल क्वांटिटी इज फिक्स्ड. इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है बट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन varies greatly due to its constant movement. लेकिन इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होती रहती है इसके कांस्टेंट मूवमेंट की वजह से थ्रू वाटर साइकिल एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. सो वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की वजह से ये जो वाटर है कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है. फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया. नेचर हैज abundantly blessed India with rich freshwater resources. Indian rivers can be broadly classified as perennial and seasonal. So India में जो है काफी सारा सोर्स है फ्रेश वाटर का. यहाँ पे कई सारी जो रिवर्स है पेरिनियल हो या सीजनल हो ये हेल्प करती है फ्रेश वाटर अचीव करने में. The perennial rivers are those which have a continuous flow of water from all over the year. सो ये जो पेरिनियल रिवर्स है पूरे साल वैसी की वैसी रहती है, ये पूरे साल बहती है. सम पेरिनियल रिवर्स इन द इंडिया आर रवि, बीस, चेनाब, झेलम, सतलज, गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र एंड कोसी. सो ये चिल्ड्रन कुछ पेरिनियल रिवर्स है. नाउ लेट्स रीड व्हाट आर द सीजनल रिवर्स. सीजनल रिवर्स आर रेन फेड एंड डू नॉट फ्लो ऑल अराउंड द ईयर. सो ये जो सीजनल रिवर है ये सीजन के अकॉर्डिंग आते हैं, ये पूरे साल नहीं चलते हैं एंड दे आर मेनली फाउंड इन सेंट्रल एंड पेनिनसुलर रीजन्स. सो ये जो है मेनली सेंट्रल और पेनिनसुलर रीजन में मिलते हैं. इंक्लूड महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, चंबल, बेटवा, सिंध एंड लुनी. सो यहाँ पे नेम दिए गए कुछ सीजनल रिवर्स की. वाटर कंजर्वेशन. फ्रेश वाटर स्कैसिटी मे बी a big crisis in future unless steps are taken to manage water properly. So fresh water की जो scarcity है वो एक बड़ी क्राइसिस बन सकती है फ्यूचर में अगर हमने इसे ठीक से मैनेज नहीं किया, प्रॉपरली कंजर्व नहीं किया. हाउ कैन यू मैनेज वाटर? Every individual can contribute towards water conservation and can make a difference in the environment. तो हर कोई जो है वाटर कंजर्वेशन को जो है मैनेज कर सकता है और उसको एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है. यू कैन स्टार्ट बाय यूजिंग ओनली वन एज मच वाटर एज यू रिक्वायर्ड. सो उतना ही वाटर लीजिए जितना आपको चाहिए. हियर आर सम स्टेप्स बीइंग टेकन बाय डिफरेंट कंट्रीज टू कंजर्व वाटर एंड इट्स क्वालिटी. सो वाटर और क्वालिटी को चेक करने के लिए कुछ कंट्रीज यहाँ पे दी गई हैं. डिफरेंट कंट्रीज हैं जो क्या कुछ चीज़ें करती हैं. वाटर रीयूज एंड रिसाइकलिंग, वाटर को रीयूज करें एंड रिसाइकल करें. सी वाटर डिसैलिनेशन मीन्स सी वाटर में से साल्ट को निकालना है, डिसैलिनेशन करना है. प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना. रिवर क्लीनिंग टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वाटर, रिवर को क्लीन करना ताकि वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके. अफॉरेस्टेशन टू रिड्यूस रन ऑफ, एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना ताकि वाटर जो है जो सॉइल है वो भी इरोजन ना हो और वाटर रन ऑफ ना करें. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, encouraging better irrigation practices, addressing causes of pollution. So इन सारे steps को अगर हम follow करते हैं तो we can conserve water. Now let's do the question answer here. Name all the landforms discussed in the chapter. So जो भी landforms आपने यहाँ पढ़े इस chapter में that you have to write here. State two characteristic features of the plateaus. Plateaus के दो features आपको यहाँ पे लिखने हैं. What is the importance of parent rock? Parent rock का क्या importance है? This write it. In which part of India is a black soil?
So आपको उस एरिया का नाम लिखना है जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है. Now let's move on to answer in detail. Discuss how different land types are utilized by humans. So humans कैसे जो है different land types को utilize करते हैं. This you have to write. Give an account to all the different soil types found in India. So कौन कौन से soil types हैं उनके बारे में you have to write something. Discuss various methods of soil conservation. Soil को कैसे conserve करना चाहिए by terrace farming or different methods that we have learned. You have to write that. Discuss the freshwater resources in India. So freshwater के क्या क्या resources हैं that you have to write. So first of all, rainwater is the main source of the fresh water in India or in any world के किसी भी कोने में. Differentiate between perennial rivers and seasonal rivers. So the perennial rivers flow all the year round, but these seasonal rivers occur in a particular season. So that's why these are called seasonal rivers. You have to write down their names and write down some more points on your own. So children, with this, we have completed the chapter. I hope that you have understood it. And if you have any queries, you can ask me in the comments. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay lated.